तो फाइनली दोस्तों, here's the ice cream. I'm gonna first enjoy it and then we'll shoot the vlog again. Hello, welcome to the new vlog. So today I have my friend Didiyar with me. Say Didiyar hi. Hi everyone. So yeah, अभी हम जा रहे हैं एक जगह जिसका नाम है रोसाइम, right? Rosaim. So we are now going in and around to see the French countryside, जो कि स्ट्रासबुर्ग के काफ़ी पास में है. It's just within like 10 kilometers or 20 kilometers in and around Strasbourg, and it's very beautiful. Of course, it's even calmer than Strasbourg, whatever you have seen till today in the vlogs. And yeah, so अभी जाते जाते मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें उसकी दिखा देता हूँ. How the scenery is, how the complete ecosystem is over here. So yeah, see you soon. We are entering the Rosaim. Okay, lovely. I think I'm coming here after. I think we came in 2021, right, over here. 2021. After that, we are coming here right now. Yeah, I remember this thing. I think we had a good amount of ice cream over here, or at some other place. There is one more village I think you were talking about, right? Where we had pistachio ice cream, the white one. Aubarne. Yes. Lovely. Yes. तो अभी हम हैं रोसाइम में and we are just entering the city. Sorry, the town. देखो भाई साहब, तो ये है रोसाइम and yeah, that's how beautiful it is. See, this is what the French countryside looks like. It's still a little bit metropolitan because of the Strasbourg thing, of course. लेकिन आगे आपको दिखाता हूँ. अच्छी खासी ऐसे छोटी ऐसे बिल्डिंग्स है और टिम्बर वुड के काफ़ी सारे घर है यहाँ पर. My recommendation for you is like whenever you visit Strasbourg, try to keep at least 2 or 3 days aside to visit these places around the Strasbourg, क्योंकि ये काफ़ी प्यारी जगह है. और जो बोलते हैं ना आपको कि शांति चाहिए, जो आपको शायद से ये नज़ारा इंडिया में हमें भी विलेजेस में देखने मिलता है, लेकिन यहाँ के विलेजेस का एक अलग खासियत है. इनके ट्रेडिशंस अलग है. बट अदरवाइज द कूल एंड कामनेस इज जस्ट लाइक व्हाट यू एक्सपीरियंस इन इंडिया. तो आप मज़े ले सकते हो यहाँ पर इनके हिसाब से टू एक्सपीरियंस द फ्रेंच कल्चर ऑन द कंट्री साइड. तो ये है फ्रेंच बेकरी. आई थिंक आई विल गिव यू अ टूर ऑफ फ्रेंच बेकरी लेटर ऑन. लेकिन देखिए यहाँ पर पेस्ट्रीज काफ़ी सारे ऐसे रहते हैं. इट्स नेवर लाइक व्हाट वी सी इन ब्लैक फॉरेस्ट. Oh, it's Alsace, from Alsace. Okay. Alsace in Germany. Lovely. Yeah, Kirsch is the So is it named after forest of? exactly. Okay, Yeah, so the so name. is the origin is from here, the Black Forest cake. Okay. Black Forest नाम का जो केक रहता है और पेस्ट्री जो मिलती है हमें और केक भी आता है. So it's an origin from here basically. Let's just show you. Merci. अब तो ये देखिए ब्लैक फॉरेस्ट नाम का जो अभी वो फ्रेंच लेडी ने जो हमें बताया. So it's this one and it's the origin from this very town of Rosaim. And it's the origin of Alsace in general मैं बोलूँगा. ये है Alsatian costumes, traditional. I think later on we'll give you a much more nice tour of this. I have French bakery में अंदर to just purchase the Black Forest pastry. और आपको बताता हूँ मैं how it looks like and how it tastes like. Okay, and cake, right? This one? Nuts cake. Nuts cake. Okay, nuts cake. That's really nice.
काफ़ी सारे पेस्ट्रीज देखिए, ये है ब्लैक फॉरेस्ट, ये इज ओरिजिन फ्रॉम हियर। आप डिफरेंस देख रहे हो बेकरीज में? स्ट्रासबर्ग में आपको दिखाऊंगा डिफरेंस, हाउ इट लुक्स लाइक। डिफरेंस इज बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारे लोकल जो एसेंस है वो अभी भी प्रिजर्व्ड है, बट इन स्ट्रासबर्ग इट इज़ नॉट। उसके ऊपर एक अलग से ब्लॉग बनाएंगे फॉर श्योर रिगार्डिंग द बेकरीज एंड हाउ इट लुक्स लाइक एंड हाउ इट वेरीज फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी एंड वन टाउन टू अनदर टाउन। Oh, so that's what a black forest looks like. थोड़ा different है than what we have in India, I guess. So I think we will have it now. आपको बताता हूँ मैं टेस्ट कैसा है इसका। So yeah, this is the origin from Alsace. मतलब ब्लैक फॉरेस्ट ये चीज़ ही अल्सास में ओरिजिन हो गया। I'm having the bite of black forest. It's really good. I think यहाँ के लोगों के लिए इतना स्पेशल नहीं है अभी, but I think it will be special for Indians because we don't really get this kind of cake or pastries in India. That's really good. So yeah, just we had the black forest pastry and now heading into the more deeper side of the city center. समर में काफ़ी अच्छी चीज़ें रहती है। It's very nice to, you know, देखिए the benches and all, you can actually sit here. So this is the most European style that you'll always find, that benches are there outside any restaurant, cafes or hotels, and people just sit here, have breakfast, lunch or drinks in general. So yeah, थोड़ा मैं आपको एक वाइड पर्सपेक्टिव दिखाता हूँ मैं। देखो भाई साहब, ये कुछ ऐसे इनके मॉन्यूमेंट्स है, आई थिंक विच हैज़ अ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। अभी मुझे इसका तो पता नहीं है ठीक से, बट आई थिंक मैं यूनिवर्सिटी के टाइम पर आया था यहाँ पर। सो द प्लेस वी केम फ्रॉम, वहाँ पर टूरिज्म ऑफिस है, सो ओवर देयर यू कैन एक्चुअली आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन एज वेल अबाउट दिस टाउन and what else beautiful things are there to explore in this town. So it's just at the beginning of the gate, the tourism office. So definitely please do visit that before you enter the city so that you get the maximum amount of advantage out of your visit. पीछे है फार्मेसी। फार्मेसी मतलब यहाँ पर मेडिसिन वगैरह मिलते हैं। इंडिया में आई थिंक आई डोंट नो वेदर दे स्टिल यूज द वर्ड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, दैट्स नॉट द केस हियर। यहाँ पर हर जगह फार्मेसी बोलते हैं, because pharmacy is the actual terminology which signifies a place where you can purchase medicines, anything related to the first aid. आपको अगर कहीं पे चोट लगी है, anything related to your biological senses वगैरह जो भी चीज़ है, anything related to your body in general, ऐसा। या अभी हम बाकी और टाउन के कुछ पार्ट्स एक्सप्लोर करेंगे एंड सी यू देयर देन। देखिए यहाँ पर ये ऐसे होता है टिम्बरवुड हाउसेस। आपको आप देख सकते हैं कि मतलब इट्स स्टिल very much giving a vintage vibe, not in terms of cars, of course. कार की वजह से it becomes a fusion of the old times and the modern times. ये देखो अभी ये ऐसे जो छोटे छोटे घर है उसके सामने ऐसी कार है। It becomes a really good fusion. The French countryside is
Basically a good fusion of the modern and the old times as well. देखिए अभी ये बैंक है क्रेडिट एग्रीकोल. इवन देयर बिल्डिंग नहीं बोल सकते इसको, ऑफिस बोलेंगे. इट्स स्टिल इनसाइड ऑफ एन ओल्ड थिंग ओनली. मतलब आर्किटेक्चर उन्होंने उसका बदला नहीं है, बस थोड़ा सा आई थिंक ऊपर का कंस्ट्रक्शन किया उन्होंने, बट रेस्ट ऑफ द थिंग इज लाइक द ओल्ड वन ओनली. एंड आई थिंक दिस इज अगेन अ कैथेड्रल ओवर हियर. I don't know whether it will be open right now. यहाँ से तो open नहीं है. Get to check it from the other side though. But yeah, just to showcase you, मैं आपको एक बार span करके दिखाता हूँ क्या. तो ये है रोसाइम टाउन. Yeah. So I'm just walking across the town now, trying to see और क्या क्या एक्सप्लोर करने के लिए है, क्योंकि काफ़ी सालों बाद आया था. वापस बेकरी है यहाँ पर. ऑफकोर्स खाने का मन करता है, लेकिन इतना भी चीट डे पे नहीं खाना चाहिए. सो ट्राई टू अवॉइड दैट. आई थिंक यू कैन सी हियर द टिम्बरवुड हाउसेस अगेन. So it's a church, right? ओके, तो हम अभी अंदर जा रहे हैं चर्च में, जो मैंने आपको पहले दिखाया था. आई हैव बीन हियर फॉर आई थिंक 2 times, लेकिन मैं यहाँ पर कभी अंदर नहीं गया. इट्स द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग इनसाइड. ऑलमोस्ट लाइक करंटली इट्स लाइक every 2 days or 1 days. Yeah. So yeah, we're going inside. Explain to you what's Yes, my yes. This is what a French countryside looks like. Oh man, it's so beautiful. It is beautiful. Yeah.
So now we are in a town called as Spa, and we are going to have some beers. Beers, right, Didyar? Or you're going to take us to some other places also to have some other things also, Yeah, let's. like this? Just kidding, okay? We don't do those things. Just beers and whiskey. That's it. But yeah, आपको दिखाता हूँ आगे beers कैसे रहते हैं यहाँ पर टाउन में. See you then. So we are in the town called Bah. कुछ दिनों बाद जहाँ भी मैं जाऊँगा आपको काफ़ी पूरा यूरोप ना एक जैसे ही दिखने लगेगा. आफ्टर सर्टेन टाइम यू फील लाइक द होल यूरोप लुक्स द सेम, क्योंकि काफ़ी सिमिलरिटीज़ है आर्किटेक्चर में एंड द काइंड ऑफ कल्चर दैट इज़ देयर. But yeah, I think the timberwood houses are very specific to Alsatian region, and you'll find the similar thing on the other side of the Germany as well. So this is the internal side of the Bah town. बीच में जो म्यूजिक फेस्टिवल था उसके थोड़े डेकोरेशंस अभी बचे यहाँ पर. एंड या सो ब्यूटीफुल. पता चल रहा है आपको कि क्यों मुझे कंट्री साइड पसंद है. एंड आई एम बेस्ड इन स्ट्रासबुर्ग बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटी, गॉड डैम ब्यूटी दैट इज देयर. सो नाइस. यहाँ पर देखिए आपको सामने वाइनार्ड दिखेगा. दैट्स द वाइनार्ड ऑन द हिल्स. ओके, सो या दैट्स द वाइनार्ड. अभी वही है, हम लोग थोड़ा सा एक दो यहाँ उस साइड पे इस साइड पे थोड़ा राउंड मार रहे हैं. एंड देन विल सिट फॉर of course the Pet Puja, and we'll see you there. So I think this is the end of the street of one side of Bah town. काफ़ी अच्छी कार है ना, vintage car. I think I'm gonna click some pictures. I think Didyar, we should also take one good selfie here on this side maybe. Yes. This side. So I think you can still see the vineyards of the hills. वहाँ पर मैं कभी गया नहीं हूँ, but yeah, hopefully in the next trip maybe. देखिए यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे स्ट्रीट्स रहते हैं, तो इसीलिए ना कार्स को जाने के लिए थोड़ी सी तकलीफ होती है. सो इन केस यू ब्रिंग योर कार हियर, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप पार्क बाहर ही करें ये टाउन के. देयर इज़ अ स्मॉल स्पेस फॉर पार्किंग जस्ट बिफोर यू एंटर द टाउन, और उसके बाद यू कैन जस्ट एक्सप्लोर दिस टाउन बाय वॉकिंग. दैट इज़ द मोस्ट वायबल वे. नहीं तो देखिए अभी ये कार को भी पीछे रुकना पड़ा था जस्ट बिकॉज द स्ट्रीट्स आर वेरी स्मॉल एंड इट्स नॉट रिकमेंडेबल टू bring your car over here, क्योंकि it creates a blockade for you and for others as well. So yeah, थोड़ा बहुत और मैं अभी एक्सप्लोर करूँगा. And let me just show you this small canal over here. I think Didyar, you're taking some nice pictures it seems. Wow, that's nice. देखिए ये गटर का पानी नहीं है. This is actually a good water and it is flowing from a small river I think which is across this town. But yeah, आप ये दूर से देखोगे ना,
ये नज़ारा काफ़ी अच्छा है. दिस इज़ आई थिंक जनरली द यूरोपियन सेटिंग जहाँ पर यू गो एनीवेयर यू विल ऑलवेज फाइंड फ्लावर्स एंड ट्रीज. इन जनरल ग्रीनरी की कमी नहीं होती कहीं पे. देखा आपने कितना कूल एंड काम प्लेस है. सी द टूरिस्ट विल स्पॉट फाइंड ऑलवेज इन स्ट्रासबर्ग, बट इन दिस प्लेसेस it's so beautiful, but still you won't find so many people over here, and this is the perfect spot to explore the beauty of French culture. क्योंकि जैसे इंडिया में बोलते हैं ना कि अगर आपको रियल इंडिया देखना है तो आप विलेज साइड पे जाओ. In a similar way, if you come to Europe and if you really want to see the real European culture, whether it's France, whether it's Germany, whether it's anything else, visit the countryside, मतलब village areas, remote areas like this. अभी हम जो खाना भी खाएंगे आपको सबको टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि देखने में तो वैसे सिमिलर स्ट्रासबर्ग में मिल जाता है, बट द काइंड ऑफ प्योरिटी दैट इज़ देयर एग्जिस्टिंग हियर इन द टाउन्स इज समथिंग ऑन द नेक्स्ट लेवल. आपको डिफरेंस पता चल जाता है. थोड़ा सा महंगा रहता है दैन स्ट्रासबर्ग यहाँ पर खाना, बट इट्स वर्थ इट. इट्स टोटली वर्थ इट. देखिए ये है एक्चुअल सिटी, ये सॉरी टाउन का एरिया. यहाँ से हम लोग जाएंगे वापस हमारे कार के पास. सो नाइस. ठंड में जितना आप समर में ये टाउन्स घूम सकते हैं ना, तब तक आप मतलब आई थिंक विंटर में उतना ही बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है आपको कोई भी टाउन्स एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज द विंटर्स आर वेरी हार्श ओवर हियर. सो आई रिकमेंड कि आप समर में ही आ जाइए यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए. दैट्स द बेस्ट थिंग. एंड हियर वी आर नियर द वाइन यार्ड. आपको अगर फ्रेंच वाइन यार्ड एक्सप्लोर करने हैं विदाउट एनी टिकट्स एंड एनीथिंग, आई थिंक या दिस फ्रेंच टाउन्स आर द बेस्ट वंस. खुद से आके यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो. एंड या यू कैन इवन हायर द टूरिस्ट गाइड ऑल्सो. यहाँ पर टूरिज्म ऑफिस के यहाँ से आपको मैं पूरा थोड़ा व्यू दिखाता और अच्छा. So, yeah. From here I think you can even see the complete town as well. I think we'll have some lunch and beers and उसके बाद ही we'll meet then. So now we are heading to Obernai. Even the night ride would be good, right, on these roads? Oh yes. So lovely. I think we came from Kolmar once. Like it was really nice at the night time. Yeah. It's good. Lovely. Everywhere, if you see, there is a vineyard. Everywhere. Because these are all the farmlands over here.
So finally, we are entering Obernai. Lovely. Again, timber wood houses. So now we are in Obernai. इस टाउन की भी काफ़ी एक अच्छी स्टोरी है, आपको बताता हूँ बाद में हम लोग अभी बैठने के बाद, लेकिन फ़िलहाल जस्ट एन्जॉय द व्यू. दिस इज Obernai town. Last time I had taken a picture over here, right? Yeah. It was filled with the flowers. I think today it is not filled with flowers so You much. can feel because here, Yeah. that street, it's narrow, but Yeah, it's full of beautiful. Yeah. It's a small street, I remember. So these are the small streets of Obernai. Now you can see over here काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स रहते हैं, एंड माइंड इट वेल कि इनका ओपनिंग टाइम बहुत ही लिमिटेड रहता है. सो आई वुड सजेस्ट कि 3 PM से पहले ही आना अगर आपको लंच वगैरह करना है तो. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. So yeah, we're searching for a place, right? Yeah, I think last time we had sat here, right? yes. Let's walk. Yeah, but I think it's changed now. Its name is changed completely. It's good. Obernai hasn't changed so much, but it feels a bit changed. Yes. I think because there's a lot of crowd, right? Yes. True. अब देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा crowd बढ़ गया है यहाँ पर, because I think a lot of people have got to know about this town now. So yeah. तो अभी हम लोग आ चुके हैं इस रेस्टोरेंट में. इसका नाम है ला कूर दे मेमे. ला कूर दे मेमे, या नॉट मेम. मुझे पहले तो फ्रेंच लैंग्वेज पता नहीं थी. आई यूज्ड टू फील लाइक इट्स मीम. सो या, अभी ये मेनू. सो दिस इज द मेनू. तात फ्लाम्बे इज द एक्चुअल लोकल फूड ऑफ स्ट्रासबुर्ग or Alsace region, I would say, not Strasbourg as such. I think I'm first going to order a beer, और उसके बाद ही we'll start with something else. Long when okay, hey, ये वाइन वाला मेनू है. Well, I'll order a beer first. Okay, so here is the beer menu. Okay, so yeah, this is the beer menu. Let's see which one we can take. So we have our beers here. Okay, cheers Didier. Cheers. Salut. Santé. Santé. यार कुछ इंडियंस ना यहाँ पर रहते हैं, वो बोलते कि ये ऐसी वाली इतनी बढ़िया बियर लेने के बाद
अल्साशियन बियर है, भले वो क्रोनेनबर्ग का ग्लास है लेकिन द बियर इज अल्साशियन ओवर हियर। काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं ना, झुंड झुंड इंडियंस का होने के बाद यार किंगफिशर की याद आ रही है। ट्रस्ट मी, देयर इज़ नो कंपैरिजन विद द किंगफिशर। वो नॉस्टैल्जिया के लिए बहुत अच्छा है, बट अल्साशियन बियर हैज़ इट्स ओन टेस्ट। ओके, अभी दीदियार ने ऑर्डर की थी ये पिकॉन। एक्चुअली it has a very juicy and a bit of a sweet flavor as well, along with a strong alcoholic essence, and yeah, it's very strong as well. वो टेस्ट करते वक्त लगता नहीं आपको कि कितनी strong है। You will feel like you know this blonde beer is more strong, but trust me, the pecan beer is even more stronger. तो आप अगर यहाँ पर गर्मी में आते हो तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा लाइट बियर ही ट्राई करो। इफ़ यू आर नॉट सो मच यूज टू बियर, पिकॉन सीधा ट्राई मत करना। द ब्लॉन्ड बियर एंड ऑल आर फाइन, बट इसमें लो थोड़ा रहता है अल्कोहल कंटेंट। अल्साशियन बियर नहीं बोल रहा हूँ मैं, नॉट इन अदर ब्लॉन्ड बियर्स। सो या ओवरऑल सो वी आर नाउ एंजॉइंग दिस। और अभी तातफ्लाम्बे में के लिए हमने ऑर्डर दिया। तातफ्लाम्बे के बारे में आपको मैं स्ट्रासबर्ग में जाके अच्छी तरीके से अलग से बताऊँगा कि व्हाट इज़ तातफ्लाम्बे, उसकी हिस्ट्री क्या है। Generally, even European people call it as the pizza of the Alsatians or the pizza of the east of France. But yeah, that's a layman's term because it looks like pizza, but it's not pizza. It's way different than pizza. बहुत अलग रहता है वो। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में एक अलग से वीडियो में। अभी हमारा तातफ्लाम्बे आ गया है। आपको मैं थोड़ा अच्छा सा और व्यू दिखाता हूँ। So yeah, तातफ्लाम्बे is an Alsatian cuisine. उसके बारे में तो आपको बाद में बताता हूँ, बट जस्ट पहले तो डिशेस देख लो। ये दीदार ने ऑर्डर किया है। It's a different one and this is one with a different cheese. बेस उसका सेम ही रहता है, क्रीम, ऑनियन एंड पोर्क जो रहता है, लारदो बोलते हैं उसको। इंडिया में पोर्क रेफर करते हैं, बट या ओवर हियर देयर आर डिफरेंट टाइप्स, जाम्बो, लारदो, ऐसे टाइप्स रहते हैं, जिस द वे इट इज़ कट। सो या इसके बारे में बाद में बताता हूँ आपको, लेकिन पहले तो आई एम गोइंग टू फर्स्ट एन्जॉय दिस रियली गुड। इट्स वन ऑफ द बेस्ट डिशेज ऑफ अल्सास। Even some of the Europeans in a layman term they call it as the Alsatian pizza, but I recommend you it's not pizza. It's nowhere near pizza. It has its own unique identity, and for the respect of the Alsatian culture, you should definitely call it only as Tafelflamme, not French pizza. The real name, Alsatian Yeah. name is Flammkuchen. Okay, you only tell. Yeah, the real name, the Alsatian name is Flammkuchen. Yes. So you got the name right. Okay, so we are enjoying this now and मिलते हैं थोड़े कुछ मिनटों में. So now we are going to have ice cream. Overnight has one of the best pistachio ice cream. I think I'll just showcase the ice cream that when we get it. It's on this side or this side? Or this side, okay. So this is the inner side of the French town called Obernai. आप देख सकते हो कि फैमिलीज काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे आते हैं क्योंकि समर है, ऑफ कोर्स वेरी इजी टू रोम अराउंड. But yeah, the tolerance level of the temperature varies from people to people. The temperature high तो है, but of course depends on whether you can tolerate it or not. But generally काफ़ी अच्छा रहता है. In general greenery अच्छी खासी है ना, तो थोड़ी हवा भी खेलती रहती है. मुझे तो अच्छा लगता है अभी, क्योंकि यहाँ भी कैथेड्रल है. आइसक्रीम शॉप ढूंढ रहे हैं हम लोग. वो हम दोनों को भी याद नहीं आ रहा है कि कहाँ पर था वो. इज अगेन फ्रेंच बेकरी. सो या आई ऑल्सो डोंट रिमेम्बर कि वो इस लेन में था या दूसरी लेन में था. तब तक नज़ारा एंजॉय कर लो थोड़ा.
देखो यहाँ पर भी सुवेनियर शॉप है, यहाँ पर भी आपको स्ट्रासबर्ग ओबरनाई के सुवेनियर्स मिल जाएंगे। देखा आपने स्ट्रीट कितनी छोटी है, लिटरली मेरे बाजू से गई, यहाँ पर बाजू से जा रही है कार। स्ट्रीट्स काफ़ी छोटी है यहाँ पर, देखिए। दैट्स द रीज़न यू शुड नेवर ब्रिंग अ कार इनसाइड द टाउन ओवर हियर। पार्क योर कार आउटसाइड द टाउन एंड देन स्टार्ट वॉकिंग। तो फाइनली दोस्तों, हियर इज़ द आइसक्रीम। I'm gonna first enjoy it and then we'll shoot the vlog again. Just अभी आइसक्रीम खाया हमने and we are just roaming around the Obernai town. This is the cathedral of the Obernai. So yeah, चल थोड़ा घूम लेते। So there, can we enter the cathedral right now? I think it's closed. It's closed, right? Closed right now. Thank you. Oh man, coming after a long time to this place is really nice, very beautiful. हाँ, लेकिन ये भी सच है कि कुछ दिनों बाद आपको सभी यूरोप के जैसे लगने लगेगा, वेरी सिमिलर। तो अभी हम जा रहे हैं इस कैथेड्रल में। So Didier suggested, so Didier, you suggest that it's a very beautiful cathedral inside, right? Yes. Yeah. Okay. You know, it's like big and the roof, especially very beautiful. It's surprising. It doesn't look like by outside, but let's go inside and see. Perfect. Sounds great. So yeah, we're entering the cathedral now. So this cathedral is also made in sandstone. As a student of geology, I would like to tell you the sandstones are very cold. You know, it's very cool, and you know, matlab, especially in the time of summer, if you enter the cathedral, you'll feel very cool inside. You won't feel the warmth of what you feel on the outside over here. So yeah, let's go inside. देखिए आप,
था ना कि ये कार जैसे कंजस्टेड हो जाता है अंदर टाउन में आने के बाद, सो see it by yourself why you shouldn't bring the car into the town. You should park it on the outside, क्योंकि यहाँ पर streets बहुत ही छोटी है and it becomes congested for you as well as for the other people. So yeah, other than that अभी हम लोग जा रहे हैं माउंट सेंट ओडिल। तो अभी मैं सीधा आपको माउंट सेंट ओडिल से ही वापस वीडियोस बनाना शुरू करूँगा। एंड या that's I think the last spot that we are visiting for today. So see you soon. So this is Mont Saint Odile. देखिए काफी ज्यादा आवाज रहने वाली है। देखो यार उस साइड पे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ थी, इसीलिए आपको बाकी कुछ सुनाई नहीं देगा। बट आई केप्ट इट नेचुरल ताकि आपको ऐसा लगे कि आप मेरे साथ घूम रहे हो। सो आई एम टेकिंग यू टू द मोस्ट अवेटेड स्पॉट ऑफ माउंट सेंट ओडिल। देखिए आपको मैंने बोला था ना कि flowers and small trees, this is very significant to the European culture. आप कहीं पे भी जाओ, छोटी भी सड़क रहेगी, आपको ये फूल और छोटे से पेड़ तो मिलेंगे वहाँ पर। You see here as well, looking at the kind of ecosystem these people have created. भले sandstones बहुत डाले लेकिन फिर भी the trees, the flowers, even the small plants hold a lot more significance here. And this is, my friends, is the region of Alsace that you're seeing from here. ये टॉप व्यू है, देख सकते हो आप। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पर। देखिए
बाय द वे आई एम कमिंग हियर फॉर द सेकेंड टाइम, क्योंकि पहली बार जब मैं आया था तब मैं मेरी यूनिवर्सिटी के फील्ड वर्क के लिए आया था यहाँ पर. सो वी वर हियर फॉर द सैटेलाइट एंड रिमोट सेंसिंग वर्कशॉप. यहाँ पर बैठ के हमें काफ़ी सारे GPS और नेविगेशन रिलेटेड चीज़ें सिखाई गई थी. मॉन्ट सेंट ओडिल उस टाइम से लेके अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ. थोड़े बहुत बस टूरिज़्म रिलेटेड ऐसे बैरिकेड्स वगैरह वो बस लगे, बट रेस्ट इट्स ऑल एग्जैक्टली द वे इट इज़. आप देख सकते हो यहाँ पर. यहाँ का जो चर्च है उसका एरिया थोड़ा मैं आपको छाँव से जाके दिखाता हूँ, क्योंकि द एक्सपोजर ऑफ द सन इज लेस ओवर देयर. ओके, सो आई थिंक नाउ यू विल बी एबल टू सी इट इन मच बेटर वे. देखिए ये भी सैंडस्टोन का बना है. ओके, तो ये है पूरा चर्च. यहाँ पर भी देखेंगे आपकी जैसे बेंचेस वगैरह है बैठने के लिए. स्टिल इफ़ यू सी, इवन दो इट्स वीकेंड, समर, इतनी ज़्यादा भीड़ है ही नहीं यहाँ पर. बहुत कम भीड़ है. हाँ, मोर देन हाफ ऑफ द बेंचेस आर एम्प्टी लिटरली ओवर हियर. तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये भी जो एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ काफ़ी सारे टूरिस्ट नहीं आते अभी. तो वर्थ एक्सप्लोरिंग, क्योंकि यहाँ से आपको ऑलमोस्ट हाफ ऑफ अल्सास के जो विलेजेस है वो आपको दिख जाता है, जो मैंने अभी जस्ट देखा है आपको. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. मैं आपको वापस दिखाता हूँ, देखिए आप. सो या वो छोटे छोटे जो आपको विलेजेस दिख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ. दीज आर द स्मॉल टाउन्स ऑफ अल्सास. और अल्सास क्या है मैं आपको बताता हूँ. सो जैसे हमारे इंडिया में तालुकाज रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स रहते हैं, तो वैसे अल्सास भी एक तरीके से आप मान लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट है, और उसके अंडर स्ट्रासबुर्ग इज ए सिटी. ओके, और स्ट्रासबुर्ग के आसपास जो ऐसे छोटे मोटे गांव जो है उनको ये लोग कम्यून्स बोलते हैं या फिर टाउन्स बोलते हैं. तो कुल मिला के बात ये है कि अल्सास इज़ अ काइंड ऑफ बोल सकते हैं आप कि एक छोटा स्टेट या तालुका है जो हम इंडिया में बोलते हैं. और वो तालुका डिस्ट्रिक्ट उसके अंडर बेसिकली एक छोटी सिटीज़ आती है, जैसे स्ट्रासबुर्ग है, मुलुस है, कोलमार है, और अभी सुबह हमने देखा रोशाइन देखा. फिर अभी मॉन्ट सेडिल आए हैं. सो मॉन्ट सेंट ओडिल, नॉट मॉन्ट सेडिल. वो एक अलग चीज़ है, वो बाद में बताऊँगा आपको उसके बारे में. वो मॉन्ट सेंट ओडिल इज़ दिस वन, द करंट प्लेस आई एम एट द मोमेंट. और उसके बाद और भी काफ़ी छोटे छोटे ऐसे टाउन्स है जहाँ पर लिटरली सिर्फ एक ही सुपर मार्केट है. सो ऐसे भी कुछ टाउन्स है, लेकिन हम वहाँ पर गए नहीं, बिकॉज आई थॉट टू टेक इट द टाउन्स जहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा एंगेजमेंट होने के चांसेस है व्हेन इट कम्स टू टूरिज्म. सो या दैट्स ऑल इट फॉर टुडे. तो ये देखिए आप मॉन्ट सेंट ओडिल. And in this way we are in a way finishing the last part of this vlog. मिलते हैं अगले इसमें, लेकिन उससे पहले मैं कुछ थोड़ी और चीज़ें आपको बीच में जाते वक्त दिखा दूँगा. ओके, सो स्टे ट्यून्ड. आपको अभी ये पूरा वीडियो देखने के बाद तो समझ आ जाएगा वो आई एम बेस्ड इन स्ट्रासबुर्ग. और आप भी काफ़ी लोग जो इंडिया में मुंबई में बेस्ड हो, चेन्नई में बेस्ड हो, न्यू दिल्ली में बेस्ड हो, नॉट ऑफ कोर्स ऑल ऑफ देम, बट फॉर मी मैंने फर्स्ट टाइम लैंडेड इन स्ट्रासबुर्ग, मेरी पहली फीलिंग ऐसी थी कि आई एम टू स्टे हियर फॉर एवर. एंड या फॉर्चुनेटली इट बिकेम ट्रू. ऑफ कोर्स इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू अ डेकेड नाउ दैट आई एम स्टेइंग हियर, आई एम रिसाइडिंग हियर. और अभी मैं अभी जो थोड़ी बहुत चीज़ें और आपको दिखा रहा हूँ मॉन्ट सेंट ओडिल के आसपास की, तो आपको और समझ में आ जाएगा व्हाई आई लव टू बी इन स्ट्रासबुर्ग. देखिए, आप वीकेंड पर सिर्फ यहाँ पर आके बैठ जाए ना
तो भी आपका सोल रिचार्जमेंट का प्रोसेस बहुत इजीली हो जाएगा। बस कुछ नहीं, अगर तो बैठ जाना है बस, जस्ट सिट इन बिटवीन द इकोसिस्टम फुल ऑफ नेचर। कुछ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ हवाएं चल रही है। यू आर जस्ट लुकिंग एट द ट्रीज वेविंग ऑफ टू यू एंड जस्ट few humans passing by, even the small humans of course. तो या आई थिंक आज के ब्लॉग के बाद आपको समझ ही आ जाएगा कि Alsace is one of the most beautiful places or the regions I would say in France, and I'm lucky to have this in my life, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था कि अल्सास नाम की कोई चीज़ रहती है इस न्यू स्ट्रासबुर्ग, क्योंकि मुझे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था, इंटरनेशनल प्रेस यूनिवर्सिटी में, एंड उसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं था। इट जस्ट हैपेंड। हाँ, बट ये एक बात सही है कि आई ऑलवेज विश फॉर समथिंग कूल एंड काम। वो मेरे पर्सनालिटी में ऐसा है कि आई लव टू बी इन अराउंड द कूल एंड काम चीज़ें व्हेनेवर आई एम आउट ऑफ माई वर्क। आई थिंक देयर इज नो प्लेस better than Alsace for this. I think after looking at the old videos, you might be knowing it. It's really one of the cool and the calm places in the whole of France. Yeah. यहाँ पर आप एक्चुअली कॉइन डाल के ना बाइनोकुलर से देख सकते हो। आपको पास वाले कुछ ऐसे गांव देखने हैं या फिर कोई ऐसे छोटे पॉइंट्स देखने हैं, ट्रीज वगैरह देखने हैं। सो यू कैन जस्ट इंसर्ट अ कॉइन। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखा रहता है। अगर इंग्लिश में भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है, कभी कभार कई जगह पर नहीं रहते हैं, तो सोच रहा हूँ गूगल ट्रांसलेटर एंड जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। बट चलो आपको बताओ कि यहाँ पर एक कॉइन डालना है, then you can look it from the binoculars. हम लोग अभी आए हैं एक छोटे से म्यूज़ियम में, जो कि चर्च के अंदर ही है, माउंट सेंट ऑरेल का है। यहाँ पर आपको पूरी हिस्ट्री देखने मिलेगी। माउंट सेंट ऑरेल की, इसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, मैं आपको इतना डिटेल में बता नहीं, because I want to keep something to make much more detailed vlogs on only this place, ताकि यहाँ पर मैं वापस आ सकूँ continuously. See, it's a very sad thing कि मैं बहुत पास में रहता हूँ and I come here very occasionally. So I think vlogs will be my medium to visit such places very, very often. So please like, share, subscribe and comment अगर आपने किया नहीं रहेगा, because it will be my motivation to basically visit such good places. So I think if you are in and around here, you should visit this museum, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हिस्ट्री की चीज़ें देखिए। आपको मतलब दीवार पे लिटरली उन्होंने टाइम लाइन दिखती है। सो इट्स रियली गुड। देख लीजिए आप यहाँ आने के बाद, ट्राई टू विजिट दिस प्लेस एज वेल, लिटिल इनसाइड द चर्च। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पूरा अच्छा लगा। ये बहुत छोटी ट्रिप थी बिकॉज टाइम बहुत कम था हमारे पास, एंड इट वाज जस्ट अ वन डे ट्रिप। हम सुबह गए और शाम को वापस आ गए, और सिर्फ 4 ही विलेजेस कर पाए, और थोड़े बहुत विलेजेस हैं यहाँ पर, वो आगे मैं एक्सप्लोर करूँगा ऑफ कोर्स। टिल देन एज यूजुअल, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू लाइफ, travel and stories with Omkar Nigam. See you soon. Peace out.